everybody is familiar with it. Snake. So, if you can recall, the cochlear shell, that is very much similar to that of this snake. So that is why it's being displayed. And your inner ear is just like a osseous bony labyrinth that contains inside the membranous labyrinth. तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई चीज़ बाहर शेल है, हार्ड है, बोनी है, that lies. अगर आपको ईयर की मॉडल आई विल शो यू लेटर ऑन, बट यू कैन इमेजिन कि अगर उसको पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्परल बोन, जो कि बड़ी वेवी सी बोन थी, सो इफ यू इमेजिन दैट इट कैरीज इनसाइड द इनर ईयर इन एडिशन टू द जैसे अपने मिडल ईयर ऑलरेडी पढ़ा. अब आप इसको देखिए तो होल दैट बोन, टेम्परल बोन, is going to form the osseous labyrinth of the inner ear. So it is made up of just what? Canals and cavities. ऐसी बोन है जिसके अंदर आपको कैविटी labyrinth का मतलब ही क्या है? The maze, भूल-भुलैया, right? So it carries the similar arranged membranous labyrinth. आपने egg भी देखा होगा. Have you ever seen it? ये boiled egg है या आप वैसे egg को तोड़ के देखें तो what you see? The outer harder shell, bony shell, and you can see a membrane inside before you reach the egg white and egg yolk. Okay? उसको imagine कर लीजिए कि बाहर आपके पास osseous labyrinth है और अंदर आपके पास membranous layer है. Anything of your routine daily life can help you to take the concept. अब हमने इसको study कैसे करना है? So we will reach towards a picture. Let me search. So, as you have discussed that this inner ear basically the osseous layer and the membranous layer. अब हम उस bony या osseous layer को देखते हैं. First of all, what we see, that lighter brown color, that rotated shell-like a covering of a snail, is the cochlea, having the module, which is modulus portion, which is spongy in nature, and you can see the cochlear. This shell is going round and round, 2.5 or more than that spiral turn it will take and form a loop of a snail, right? And this hole is the cochlear framework, outer, which is lighter brown in color. This is one part of the inner ear, okay? Next to it, you can see in this green color, this apparatus is called as vestibule in the middle, right? If you see it, that is anterior line, and this you observe the vestibule, that green part in the middle, and on the most posterior aspect you can see the semi-circular canals. There are 3, right? Okay, how you will understand? They are, one of it is the superior or anterior, right? The other one you observe is the lateral, right? And the third one is posteriorly lying. But what striking thing in it, these semicircular canals, they are right angle to each other. जैसे कि अगर anteriorly यूं है तो आपको lateral वाला इस तरह दिखेगा, right angle और perpendicular, ठीक है? इसकी लोकेशन भी कुछ ऐसी होगी कि ये भी अपना एंगल बनाएगा perpendicular, means these 3 semicircular. सेमी का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट सर्कल नहीं बना रही, बट सेमी सर्कुलर, बट दे आर हैविंग द ओपनिंग टुवर्ड्स द दिस वेस्टिब्यूल. तो ये 3 पोर्शन हो गए अगर आप इसको एज अ बोनी लैबिरिंथ स्टडी करें. अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ थी वो किन पोर्शंस पे डिपेंड करती है. यू कैन सी द कॉक्लियर डक्ट, दिस ब्लू वन, अगेन फॉलोइंग द सेम कोर्स, राइट? एंड दिस मॉड्यूलस हैज गॉट इनर कोर the made up of spiral lamina, जो आपने अभी स्टडी किया. जब आप इसको काटेंगे तो you will see the triangular cross section. There we will discuss when we will see the picture. But here you are supposed to learn the membranous, this cochlear
duct, right? This is inside. Then you concentrate on this vestibule. It carries two structures. The smaller sac line is saccule and the larger is utricle, right? And if you see the inner aspect of these semicircular canals, they also carry the semicircular ducts. इसका मतलब है बड़ा सिंपल है कि इनके बोनी नाम भी ऑलमोस्ट वही है जो इनके मेम्ब्रेनस हैं, except this vestibule that carries two part, saccule, right, inferiorly lying, और जो superiorly आपको देखा है along with that receives basically the ducts of the semicircular canal are the portion which you call it as utricle, right? So learn. And what they carry? They should carry tunnel है, labyrinth है, तो ये जो आपका osseous cavity है, that carries the perilymph inside, okay? And this membranous portion that carries endolymph in it. So your perilymph, which is outer, it resembles with the extracellular fluid, and as well as with the CSF, right? So well laden or increased amount of sodium in it, and potassium is low with the low protein, and it has to finally drain into your subarachnoid space. It communicates with that, okay? And what happens to your endolymph? That resembles with that of intracellular fluid. So आसान होगा, पेरी बाहर है तो एक्स्ट्रा सेलुलर से मिलता जुलता है, सबरेकिनॉइड स्पेस से कनेक्शन है तो सीएसएफ याद रखिएगा कि उससे भी मिलता जुलता है. अंदर वाला मेम्ब्रेनस या एंडोलिम्फ का तो वो इंट्रासेलुलर कंपोजिशन से मिलता जुलता है, मींस रिच इन पोटेशियम, अगेन लो इन सोडियम, राइट? तो इट मींस दोनों की केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से फर्क है, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट which you will learn, that these are bony, outer rim and the membranous, and what they carry in actual inside. So in addition to that, you are looking the nerve that is connecting two parts of your this inner ear. One is coming from the cochlea, that could be the, can you name it? Cochlear. Part of your which nerve? Vestibular cochlear, 8th cranial nerve, right? And the other, these two you can see, these are coming out from this vestibular portion. So vestibular part of your vestibular cochlear nerve. तो इस तरह से आपका vestibular cochlear nerve पूरी होती है. Okay, let's repeat कि इसको हमने कहाँ तक लेकर जाना है, your brain से connection है ना? So, क्या करेंगे इस वेस्टिबुलर कॉक्लियर का? इसके अगर आपको मेन न्यूक्लिया याद हो तो यू कैन रिकॉल वेयर दे आर. कहाँ थे? जंक्शनल एरिया ऑफ विच से पॉन्स एंड मेडुला. अच्छा, नंबर क्या था? द वेस्टिबुलर दे आर 4, ठीक है, और कॉक्लियर, वेंट्रल एंड डॉर्सल 6 हो गए, ठीक है. So this is how they are placed, and of course you know that all these info are supposed to go and communicate with that of medial geniculate body, and finally the angular gyrus of the temporal lobe. सारा मैप आपको जो ऑलरेडी पता है ब्रेन में, उसके साथ इसका कनेक्शन देना है. ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हैज़ टू डील विद योर हेयरिंग प्रोसेस. साउंड भी है, अब जो हम सुन रहे हैं सब कुछ, ये हेयरिंग सिर्फ ये नहीं है कि हमारे कान को टकराई है तो वी आर डन विद इट. नो, इट हैज़ टू इन्वॉल्व योर इनर ईयर, राइट? उसके अलावा ये क्या करता है आपका इनर ईयर? डील विद योर बैलेंस, इक्विलिब्रियम. सो पोस्टरल चेंजेस, इट मीन्स आई मूवमेंट्स, रेटिना, जैसे कि आप गेज एक जगह देख रहे हैं एंड इफ यू वांट टू टर्न योर हेड, स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन दैट. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल ड्राइविंग. ऐसे होता है ना कि आप रोड क्रॉस भी कर रहे चलते हुए या किसी चीज़ पे, किसी व्हीकल पे, तो यू समटाइम्स कंसंट्रेट ऑन अ थिंग कि जी पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही, बाइक तो नहीं आ रहा, देन यू कीप ऑन. सो ये सारा का सारा सिस्टम इसके साथ अटैच है, सो दैट द this vestibulocochlear nerve is supposed to work along with this whole mechanism that seems very complex in our nature, but we will make it a little bit simpler. And you can see few numbers, 1 2 3 4 5. Basically these are the 5 openings through which the circular ducts are supposed to open into the
यूट्रिकल, राइट? अच्छा, इसमें आप देखते हो, अगर हम इसको बाहर की शेल को खोल दें तो यू विल सी द 3 डायलेटेड पार्ट्स कॉल्ड एज एम्पुला, राइट? एंड अदर जॉइंट पोर्शन, दीज आर कॉल्ड एज क्रस कम्यून्स। इसका मतलब है उन 5 ओपनिंग में से 3 डायलेटेड हैं, जिसे आप एम्पुला कहते हो, एंड दे कैरी सम स्पेशल न्यूरोएपिथेलियल सेल्स इनसाइड। इन तीनों में ही ये जो 3 पोर्शन है, सेमी सर्कुलर कैनाल जिसके एम्पुला के अंदर वी गेट द न्यूरोएपिथेलियल स्पेशल सेंसरी हेयर सेल्स, यू वुड से, राइट? इसी तरह यूट्रिकल और सेक्यूल, इसको काटें तो अगेन वी गेट द मैकुला इनसाइड। मैकुला वर्ड दिया गया है फ्रॉम द डार्क स्पॉट, राइट? सो द मैकुला इज देयर टू डिटेक्ट द ऑल इक्विलिब्रियम बैलेंस सेंसेशन। और यहाँ पे इसको अगर हम कट करें तो कॉक्लियर डक्ट इनसाइड वी गेट व्हाट? लास्ट टॉपिक आपने अभी रीड किया था, द स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कार्टी। इट मीन्स ये 3 पोर्शंस जो हम पढ़ेंगे पोर्शन में, इन तीनों के अंदर स्पेशलाइज्ड एरिया है टू सेंस ईदर द साउंड और कंसर्न विद योर बैलेंस, इक्विलिब्रियम, पोस्चर, राइट? So let's select some other picture to explain it a little bit more. Okay, a related picture you have already, I think, learned in your gross anatomy, that if you cut the vestibule, you can see the cochlea shell here and the semicircular canal coming. This very central portion is vestibule. What is going to happen? That there lies the vestibular crest, and above it you get the elliptical recess, and below is the spherical recess, and that will bifurcate is enclosing the cochlear recess, right? ये कुछ आपको रेसेसेस का कॉन्सेप्ट है, जो पोटेंशियल स्पेसेस होती हैं, जैसे कि आपने लिवर में भी पढ़ी थी, राइट? एंड इफ यू पुट द सेक्यूल विल फिट हियर, the utricle will fit here, and the initial segment of cochlear duct will continue or start from there. Is it clear? Is it clear up to now? So we'll move towards the another picture. Okay. So let's have a look at what we want to explain. If you concentrate the external auditory meatus, and here you see this tympanic membrane, then you enter into the middle ear cavity, tympanic cavity जिसको आप बोलते हैं, having the malleus, incus and stapes. इसका foot plate of stapes is towards this vestibule, hence the oval window. वहाँ ये fit होके इसको जैसे close कर रही है, right? Then there is another ground window, इसको secondary tympanic membrane cover करेगी. So you have learned it towards, हमने इनर ईयर जो मीडियल वॉल थी, अगर आपको याद हो, ऑफ द मिडिल ईयर विल शो द ओवल एंड राउंड विंडो, ठीक है? हेंस यू आर फेमिलियर विद द फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई, ठीक है, और फेनिस्ट्रा कॉक्लियाई. इसके अंदर आपका फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज फिट हो जाएगा, और यहाँ सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी टू डैम्पन द एक्स्ट्रा नॉइज, राइट? सो दिस इज द प्रीवियस concept we have to add in this. Okay, let's find some other, and I will show you the other concern picture as well. So let's move towards first, I think this is more highlighted picture. Let me find the whole. Okay, to a sense, if you see that we cut the cochlear duct, right, and the outer cochlea, right, what we see, it seems to be triangular in cross section, in a sense that from here this bony osseous, this part is the spiral lamina, and it will not complete the whole diameter. Rather, what is there? There lies this green color basilar membrane that will complete it, and on its lateral edge there lies the spiral ligament, and anterior to it, on against, you would say, the lateral wall, here we'll be showing the stratification of various epithelial layers. Stria vascularis का जिक्र अभी आपने पढ़ा था. Okay, so many cell layers are there, well vascularized. What is the purpose of it? It has to secrete the endolymph, and it has got the sodium, potassium, iron
pump in it so that the ionic composition of the endolymph should be maintained. So let's see that there is a membrane called as vesicular membrane, this green top layer, also called as Reissner's membrane. It is going to divide this cavity called as scala vestibuli from this scala media, जिसके अंदर आपको ये black color दिख रहा है, right? Okay. Then we discussed that there lies the basilar membrane. So this membrane is separating the scala media from the lower one, the scala tympani. Is it clear that there are three scala? The scala vestibuli, the scala media, and the scala tympani. And two membranes are separating them. The above simple है जी vestibuli को separate करने वाली vestibular है. एक और नाम भी दिया गया है, स्टडी कर ले, Reissner's membrane. Then media है, उस रेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर एक बहुत ही important sensory organ, the spiral organ of Carti, that is called as basilar membrane. ये मीडिया को tympani से separate कर रहा है, right? And you can see that if transversely we cut, we see these spirally arranged bony osseous labyrinth. And on each segment you can observe this very portion. ये आपको इधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, इधर भी. The labeling is there. And the scala tympani and scala vestibuli, they carry the perilymph. bony shell थी ना, they carry the perilymph. और ये बीच वाला scala media, जिसे आप cochlear duct भी कहते हैं, इसके अंदर endolymph था, right? So, but we should know that the apex, अगर हम इसको लंबी ये जो रोटेट हुई थी, उसको open up कर दें, खोल दें, तो apex वाली जगह पे there is a gap called as helicotrema. वहाँ से ये scala tympani और scala vestibuli का perilymph communicate करता है. तो अल्लाह ताला ने बॉडी में कुछ इस तरह की फॉर्मेशन की है कि कोई चीज सिक्रीट हो रही है, बन रही है, अपना लेवल मेंटेन कर रही है और कहीं जाके ड्रेन भी हो रही है या कम्युनिकेट भी करी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एयर. सो लेट्स सी सम अदर डायग्राम ऑफ दीज थ्री. सो कीप इन माइंड कि आपने क्या स्टडी करना है, कॉक्लिया, राइट. Number 2, the utricle saccule line in the vestibule and the semicircular ducts in the semicircular canal. तीन पोर्शन हो गए. तो अब हम जो अभी ट्रायंगुलर स्केलास देखे थे, स्केला मीडिया में जो हम ऑर्गन ऑफ कर्टाई देख रहे थे, वो हमने डिस्कस करना है. These cells are lying on the basilar membrane, जो वहाँ पे ग्रीन कलर से शो हुई थी. Doesn't matter कि color is different. So what you see here, you can see the basic neuroepithelial cells are the hair cells. This is the location of the inner hair cells. And इस तरफ अब आप imagine करेंगे कि this is starting from here, coming towards this side. The other picture was medial to lateral, right? And the outer hair cells are also residing here. Cylindrical है, they have got stereocilia on its top. No gynoecilia. Okay, अब एक खास चीज आप देखें कि their basal region is not reaching up to the basilar membrane. Rather, they are seated on the other variety of the cells. Being written as, आपने अभी supporting cells की एक लंबी डिटेल्स पढ़ी, जिसमें outer and inner border cells थे, pillar cells थे, pharyngeal cells थे, cells of Hansen थे. कुछ बुक इसमें और cells भी ऐड करती है, like Butcher cells and cells of Claudius. So it means supporting cells की एक लंबी लाइन है जिसमें हमारे पास न्यूरोएपिथेलियल सेल्स कौन से हैं, the inner and outer hair cells. Inner cells के ऊपर स्टेरोसिलिया आपने मुझे बताया 50 to 60 थे, right? Almost इसके डबल आपको outer hair cell पे तादाद मिल जाती है, राइट. नंबर इनका ज्यादा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रोज, और ये सिंगल रो बनाता है, ये 3 से 5 रो बनाएगा, राइट. ओके, एंड टू अदर इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन लर्न दैट टू these are rod like pillar cells, inner and outer, are creating a tunnel. This is called as inner tunnel of Corti, right. Then you observe another tunnel. This is the outer tunnel being formed with the help of Hansen cells and outer phalangeal cells, right. Two tunnels are there. When you receive the sound in your ear that strikes your eardrum, vibration होगी वहाँ पे, then it will enter into your middle ear cavity. वहाँ पे ossicles move करेंगे,
वेव बन जाएगी, राइट? दैट वेव विल गोना स्ट्राइक योर इनर ईयर, ठीक है? इनर ईयर में जब दाखिल होगी तो ये डिफरेंट न्यूरो एपिथेलियल जो आपके स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स या ऑर्गन्स हैं उनमें ये मूवमेंट होगी एंड यू विल परसीव द साउंड एंड यू कैन सी द एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स आर देयर। तो अगर ये ऑर्गन ऑफ पार्टी सेंस ऑफ हियरिंग के लिए है तो कौन सा पार्ट आपका नर्व का यहाँ लगा होगा? वेस्टिबुलर या कॉक्लियर? कॉक्लियर अटैच होगा, ठीक है? वो आप रिसीव करोगे। इट मीन्स दैट द मैकेनिकल एनर्जी जो कि चीजों के टकराने से वाइब्रेशन वेव बन रही थी वो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करेगी और वो आपका ब्रेन जब सिग्नल्स लेके ऊपर जाएगा टुवर्ड्स द ब्रेन विल बी परसीव्ड एज अ साउंड, वहां इंटरप्रेट होगा। यू कैन सी हाउ द थिंग्स वी अप्रिशिएट एंड फाइनली they are being changed and finally electrical impulses are traveling towards your brain so that you may understand the sound, right? Okay, that was about the organ of Corti and now I will show you some other related picture if I get it. Two cells, right? These are again hair cells. One hair cell, which is hair cell number 1, is having a basal dilated or flask shaped body, right? And the other hair cell has got the cylindrical body, right? And what they carry on their apical side? The kynocelia, one kynocelia each, right? And this is a rigid structure. And then you can see so many stereocelia in this. Either you will learn it as a descending fashion or ascending. रूल ये होगा जो टॉलर स्टेरोसेलिया होगा वो काइनोसेलियम के साथ खड़ा होगा। यू गेट इट? सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ योर सेंसरी न्यूरल या हेयर सेल्स। अच्छा, ये पीछे भी आपको कोलमनर सेल्स दिख रहे हैं। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स या बुक्स में लिखा होगा सस्टेंटिकुलर सेल, राइट? सो दे आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द मैकुला ऑफ योर सेक्यूल एंड यूट्रिकल, राइट? अच्छा, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है विच इज ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन इट्स नेचर एंड वेल लेडन विद द कैल्शियम कार्बोनेट और ऑटोलिथिक कंटेंट, हेंस कॉल्ड ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट ऑन इट्स अपर साइड। ओके, अब क्या हो रहा है थोड़ा सा आपको इसको समझना है। वी हैव गॉट बेस में आप देख रहे हो कप शेप, एफरेंट इज रीचिंग है एंड इफरेंट आप देखे बटन लाइक है और इस तरफ दोनों एफरेंट इफरेंट आपकी बटन लाइक मूव कर रही हैं टू रिसीव। ओके, व्हाट इज गोना हैपन व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक्स योर ईयर? अब अंदर जो है डिफरेंट हमने पढ़े थे जी, मैकुला है और एम्पुला के अंदर स्पेशलाइज्ड एरिया है क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा के या सेमी सर्कुलर कैनाल के और यूट्रिकल सेक्यूल के जो आपके पास न्यूरो सेंसरी सेल्स हैं वो सेम है। लकीली ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हम डिस्कस कर चुके। अब ये जो आपका मैकुला और जो आपका क्रिस्टी है उसके सेल्स डिस्कस कर रहे हैं और साउंड का थोड़ा सा मैकेनिज्म की कैसे आयनिक चेंज इसको मूव करता है। ओके, इफ द हेड इज मूविंग इन लाइक इफ यू आर ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइसाइकिल, सडन द जर्क हैपेंस, योर हेड मूव्स इन अ लीनियर और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ऐसे ही है। एंड इवन इफ यू move your head backwards but in a linear fashion, right? So this horizontal movement of your head is being detected by the cells of the Christie के अंदर जो आपके the utricle के अंदर जो मैकुली cells हैं। In this apparatus, let me इसको हम सेक्यूल कर लेते हैं, इसको यूट्रिकल कर लेते हैं। तो जो हमारी ये क्योंकि बेसिकली जो दरमियान का हिस्सा है दैट इज मेंट टू डिटेक्ट द स्टैटिक बैलेंस और लीनियर एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, और पीछे जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल थे और उसके एम्पुला में हमने कहा क्रिस्टा एम्पुलरिस हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? काइनेटिक और रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए कैसे करेंगे? द सेमी सर्कुलर है ना, सर्कुलर कैनाल, दे हैव गॉट द क्रिस्टी इन इट, अगेन सी,
and concerned with the circular movement like kinetic या angular. और क्या चीज सी हम ऐड कर सकते हैं, इनके भी हेयर सेल है, सेम स्टोरी है कि गाइनोसीलिया है और ये बाकी स्टीरोसीलिया है, and they are covered with the membrane called as scapula. So we can take so many C's with a semicircular canal and duct. Let's start. सबसे बाहर bony shell semicircular canal with a C, under semicircular ducts the next C, and they are having specialized neuroepithelial sensory neuronal cells, you would say, are the crista, again with the C, and being covered with the gelatinous या glycoproteinaceous layer called as scapula, again with the C. So these 3-4 C will help you out कि हमने कहाँ पर क्या बताना है. ओके, अच्छा, अब हम इस वेस्टिब्यूल की तरफ आए जिसके अंदर यूट्रिकल और सेक्यूल था. उसके हमने हेयर सेल्स बना लिए थे. अब हो क्या रहा है, आई वाज टॉकिंग कि हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे ये जो सेल्स थे जो लगे हुए हैं काइनोसीलिया एंड स्टीरोसीलिया, दे विल आल्सो मूव लाइक दिस, राइट. जब ये मूव करेंगे, इनके अंदर ये टिप लिंक्स बने हुए हैं, ये थोड़े ओपन हो जाएंगे, एंड व्हाट विल बी हैपनिंग, ये टिप लिंक अगर बने हुए, इसकी डायरेक्शन अगर मैं यूं काट दूं लाइक इन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जिसको यूट्रिकल ने सेंस करना है, हॉरिजॉन्टल को, राइट. द पोटेशियम इज गेटिंग इन, and along with that voltage gated calcium is also going to be entering into it. और नतीजतन क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो रही है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डीपोलराइजेशन, जैसे आपका हेड लीनियरी आगे गया और आपके जो अंदर हेयर सेल्स थे उनकी मूवमेंट से क्या हुआ, टॉप लिंक्स खुले, पोटेशियम अंदर आया, कैल्शियम भी अंदर आ गया, डीपोलराइजेशन हो गई, एंड द रिलीज ऑफ हेंस न्यूरोट्रांसमीटर, उसको उन्होंने एस्पार्टेट और ग्लूटामेट का नाम दिया है, विच इज बीइंग रिलीज एंड इज सेंस्ड बाय दिस एफरेंट, राइट. सो दिस इज हाउ दिस विल डिटेक्ट कि आपका हेड कहीं मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ओके, अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो हमारा हेड वर्टिकल भी तो मूव कर सकता है, जैसे हम जंप अप हो, या आप लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हो, या आप एरोप्लेन में ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रहे हो. That vertical but still linear, this acceleration will be detected by the macula located in the saccule, right? Is it easy? Can I repeat? समझ आई ये बात? कि आपका जो यूट्रिकल एंड सैक्यूल था, जो आपका स्टैटिक बैलेंस इन अ सेंस पिक कर रहा है कि आप खड़े हो, सर आगे को जा रहा है, पीछे को जा रहा है इन हॉरिजॉन्टल, तो जो आपका यूट्रिकल के मैकुला पिक कर रहे हैं. और अगर आप खड़े हो, ऊपर जा रहे हो इन लेफ्ट और नीचे जा रहे हो, सॉर्ट ऑफ, दैट इज अ वर्टिकल एक्सेलरेशन. ये सैक्यूल का मैकुला डिटेक्ट कर रहे हैं. मैकुला इज अ प्लेस दैट कैरीज द हेयर सेल्स, राइट. ओके, अच्छा, अब सिर्फ बात इतनी नहीं है, वी आर सपोज टू लर्न अबाउट द सेमी सर्कुलर कैनाल. इसमें हमने पढ़ा था एम्पुला डायलेटेड एरिया है, they are having crista in it. अब वो क्रिस्टा क्या सेंस कर रहे हैं, रोटेशनल मूवमेंट, आपका सर घूम रहा है या आप रोटेशनल मूवमेंट में अप्स एंड डाउन हो रहे हो, तो आपके जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर डक्ट्स थी उनकी एम्पलरी रीजन में क्रिस्टा है, राइट. अगेन हैविंग द हेयर सेल. ऐसे ही है, टाइप 1 टाइप 2 सेम फिनोमेना होता है, गाइनोसीलिया भी है, स्टीरोसीलिया भी है. इसी तरह इसमें पोटेशियम जाएगा, यहाँ पर फिर न्यूरोट्रांसमीटर डीपोलराइजेशन पे रिलीज होगा, एफरेंट नर्व्स को कंडक्शन लेके जाएगी. और यहाँ आपके इन दो पोर्शंस के लिए आपका क्या वेस्टिबुलर नर्व इज सपोज टू टेक, बिकॉज इट हैज टू डील विद योर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, योर आईज आर लुकिंग टुवर्ड्स अ इमेज, ऐसे ही है, ठीक है, वो आपके रेटिना पे इम्प्रिंट होता है और आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट. सो दैट जस्ट हेयरिंग और अपना बैलेंस मेंटेन रखना, सिर्फ आपका ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व या इनर ईयर का काम कंप्लीटली नहीं है अगर बाकी सपोर्टिंग लोग हेल्प आउट ना करें. यू गेट इट, ठीक है. इसके अलावा आपने पोस्टर बैलेंस का, सेरी बैलेंस का अलग एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर उसकी
भी इंजरी हो जाए तो आपको एटेक्सिक गेट और बहुत इस तरह की सेंस लाइक मिलती, बट यू आर सपोज टू बी क्लियर कट कि हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कैसे काम करती है, कौन सा रीजन हमारा हेयरिंग से कंसर्न है और कौन सा हमारा सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस को डील करता है। ओके, हमने कौन से 3 बड़े जो सेंसरी ऑर्गन्स आप कह सकते हैं कॉक्लिया में क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, दिस इज वेरी डल राइटिंग, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इन द कॉक्लिया नंबर 1। देन इन द यूट्रिकल और सैक्यूल में हमने क्या पढ़ा, मैक्युला, मैक्युला कैरिंग द these hair type 1 and type 2 and the sustentacular and supporting cells, right? और उसके बाद हमने पढ़ा सेमी सर्कुलर केनाल के एम्पुला में, क्रिस्टा एम्पुलरिस में अगेन वी हैव गॉट क्रिस्टा with the neuroepithelial cells, right? Having again gynoecilia and stereocilia. अच्छा, अब इन तीनों पे मेम्ब्रेन थी, वो हमने कैसे याद करनी है। The organ of Corti पे क्या थी, pectoral membrane थी, ये नीचे organ of Corti if you can remember, OT से याद रख ले, organ of Corti के ऊपर pectoral membrane थी, resting foot किस पे था, basilar membrane पे बैठी हुई थी, organ of Corti के cells जो हमने स्टडी किए। अच्छा, जो आपका ये मैकुला है, दिस इफ आई हैव मेड इट मैकुला, तो इसके ऊपर ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट थे और ये हैवियर होते हैं, तो यूजुअली जब आपकी बॉडी मूव करती है ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से भी ये स्टीरोसिलिया बेंड करेंगे। एक तो हमारी हेड रोटेशन है ना, तो उसमें आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी एड अप होंगी क्योंकि इन ऑटोलिथिक कंटेंट जो अंदर है ये भी इसको बेंड डाउन करेगा। Then comes the semicircular canals, they carry crista in it, और इसके ऊपर क्या membrane थी, the layer, the capilla, so pectoral membrane on the organ of Corti and on the macula that was the otolithic membrane, और आपने लास्ट जो क्रिस्टी थी उस C पे C है the capilla। So कोई भी फॉर्मूला बना लीजिए बिकॉज आफ्टर स्टडिंग अ कॉम्प्लेक्स नेचर स्ट्रक्चर तो हमें एंड पे भूल जाता है कि व्हाट मेम्ब्रेन इज ऑन द टॉप, व्हाट कंटेंट आर देयर। लाइक अगर हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की डिटेल पे जाएं, ये ए सेलुलर लेयर है लेकिन कोलेजन फाइबर्स विद डिफरेंट प्रोटीन टाइप्स अंदर हैं। कौन कौन सी, टाइप 2 कोलेजन प्रोटीन है, टाइप 5 मेंशन की हुई है और इसके अलावा 9 and 10 भी मेंशन की हुई इन सम अदर बुक्स। So this is how the composition you should know, but all of them are having the glycoproteinaceous nature. Autolytic का नाम ही बता रहे हैं कि इसके अंदर ऑटोलिथ्स या कैल्शियम कार्बोनेट है, कपला के अंदर नहीं है, we are without this calcium carbonate. So these are the few differences if the membranes are being asked. So let's see few picture of it, if we can explain. Again the same picture which I have made on the blackboard, that you can see the type 1 here, type 2 here, and you can see the taller gynoecilia, rigid one, and the stereocilia, right? And on the either side you can see the supporting or sustentacular cells, and you get the afferent which has got this cup shaped receptor area, and the efferent terminal you can see as well, and they have enlarged it to show you the tip links. इसके अलावा इसके दरमियान साइड लिंक्स भी हैं, मिडल और बेजल एरिया भी आप देखते हो आपस में इसकी कनेक्टिविटी देने को। और ये जो स्टेरोसीलिया है बेसिकली अगर आप ऑर्गन ऑफ कॉर्टिया में भी देखिए ये एम्बेडेड होते हैं इन द एक्टिन, इनके नीचे एक्टिन फिलामेंट होगा, और गाइनोसीलियम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस अगर आप सीलिया, स्टेरोसीलिया या आप गाइनोसीलिया की डिटेल पढ़े तो यू विल लेट इट नो कि कहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है लाइक इन द गाइनोसीलिया और कहाँ पे आपको एक्टिन फिलामेंट्स मिलेंगे टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। दैट वाज द डिटेल ऑफ इट। लेट्स सी सम अदर पिक्चर जस्ट टू रिवाइज दिस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑफ द क्रिस्टी। सेमी सर्कुलर कैनाल की ये विंडोज की तरह इनको ओपन किया गया है और एक आपको इलाज करके क्रिस्टा एम्पुलरिस की शेप दिखाई गई है जिसके अंदर हेयर सेल्स हैं और इर्द गिर्द जो सेल्स हैं दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, और उसके ऊपर जो जेलेटिनस लेयर है दैट इज कपला, राइट।
और ये सारा का सारा जो सेंसरी आपका अपरेटस है, ये जो आपका लाइक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और फिर उधर से सेक्यूल एंड यूट्रिकल और डक्ट्स, इन सब के अंदर क्या रन कर रहा है? एंडोलिम्फ, ठीक है। और जो बाहर बोनी कवरिंग की उसके अंदर रन कर रहा है पेरिलिम्फ, राइट। सो एक और डायग्राम देखते हैं टू सी। Okay, histologically, if you can see, so on this side you can observe the spiral ganglion region, then the spiral lamina is being cut and you can see the basilar membrane showing the organ of Corti over it, and the vestibular membrane is there. So this is scala vestibuli, this is scala media holding the organ of Corti, and this is scala tympani, and on its lateral edge जहाँ पे स्पाइरल लिगामेंट है, इसके आगे जो लेयर स्ट्रेटिफाइड हुई थी वो बना रही थी स्ट्राया वेस्कुलरिस, जो कि एंडोलिम्फ इसके अंदर सीक्रेट करके डाल रहा है। दिस इज हाउ इफ हिस्टोलॉजिकल व्यू इज बीइंग शोन। सो लेट्स सी सम अदर। Again, I'll show you a picture of organ of Corti. बार बार देखोगे तो it will give a more important and interesting impact. ये बेसलर मेम्ब्रेन है एंड यू कैन सी फ्रॉम ये स्पाइरल जो बोनी है लेमिना, ये रास्ता दे रहा है फॉर द कॉक्लियर नर्व, और ये आपके पास इनर हेयर सेल्स हैं, इस तरफ आउटर हेयर सेल्स हैं। ये बेसलर मेम्ब्रेन को रादर टच नहीं कर रहे बल्कि फ्रेंजियल सेल्स पर बैठे हुए, एंड दे आर बेसिकली टचिंग। सो व्हाट इज गोना हैपन व्हेन साउंड वेव्स कम, तो जो बहुत हाई पिच हार्डर श्रिल किस्म की वॉइस है वो इनिशियल या बेस ऑफ दिस बोनी पोर्शन को हिट करेगी। अच्छा, जो उस शदीद तेज आवाज से कुछ कम होगी, कम तीखी, दैट विल रीच अप टू द मिडल ऑफ द बेसलर मेम्ब्रेन, और जो बहुत सॉफ्ट वो लाइट आवाज होगी वो एपेक्स तक जाएगी। तो कुछ इसको इस तरह याद रखें कि एकदम से आपको गुस्से में झड़कती हुई तेज आवाज हो, वो शुरू में ही बेसलर के स्टार्ट में ही दम तोड़ देगी। उससे जो जरा कम इंटेंसिटी की, थोड़ी कम शिद्दत, कम मिडिल फ्रीक्वेंसी वाली है, वो आवाज दरमियान तक ट्रेवल करेगी, राइट, ठीक है। और जो बहुत धीमी है, जो बज़ाहिर लगती है कि इसमें कोई असर नहीं है, रोज घर में आपको होता है कि प्लीज गो एंड डू दैट, योर पेरेंट्स और अदर सिबलिंग्स यूज्ड टू डू इन अ पोलाइट वे, वो कहाँ तक ट्रेवल करती है? अप टू द एपेक्स, लंबा रास्ता ट्रेवल करती है। जस्ट आई हैव मेड अ स्टोरी कि आपको याद रह जाए कि शदीद हाई फ्रीक्वेंसी की इनिशियल और उससे कम मिडिल में रह जाएगी और बिल्कुल लो वाली इस तरफ मूव करेगी। हमारा हियरिंग उसका कितना है कैपेसिटी? 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ठीक है। सो लो फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल एंड तक मिलेगी, फिर मिडिल, और बिल्कुल 20,000 हर्ट्ज इसके इनिशियल सेगमेंट ऑफ बेसलर मेम्ब्रेन तक आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। सो इन दिस वे विल सी नाउ, करीब से फोकस करके बना लें। सो आई एम रिपीटिंग दिस पेट्रस पार्ट, इसमें टेगमेंट टिम्पन है। इफ यू लास्ट रोज, इफ यू कैन नॉट सी, यू कैन स्टैंड, ठीक है। सो I am entering from this auricle, ये external auditory meatus, ये जो चीज़ फर्स्ट हिट हो रही है दैट इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि कनकेव थी, ठीक है। इसके पीछे क्या लगे हुए हैं? यू कैन सी द ईयर ऑसिकल्स, राइट। ये ईयर ऑसिकल्स में, अब मुझे ये निकालने दीजिए, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज दैट इज बीइंग अटैच ऑन द ओवल विंडो। अब इसको किस तरह से देखना है? ये जो शेल लाइक था दैट इज द कॉक्लिया, right, and the middle dilated portion is the vestibule, and these semicircular canals are present most posteriorly, which are 3 in number, and you can now very well imagine that every semicircular canal is right angle to the other या perpendicular। even interesting बात ये कि जब इनको हम खोलते हैं और इनके अंदर जो different cells हैं वो भी अपने आप को perpendicularly arrange करते हैं। लाइक अगर यूट्रिकल या सेक्यूल में मैकुला है तो एक वॉल पे सेल इस डायरेक्शन में पड़े होंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ इस डायरेक्शन में पड़े होंगे, मतलब आपस में भी ये
डिफरेंट एरिया में परपेंडिकुलरली कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक ईयर में है, फिर दूसरे ईयर में है, सो आपका बैलेंस मेंटेन हो रहा है, राइट। अगर हम इसको इस तरह स्टडी करें, इफ यू कैन लर्न इट, दिस हॉरिजॉन्टली लाइंग इज लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये आपका अगर राइट ईयर का है तो लेफ्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेफ्ट राइट, दिस लैटरल। अच्छा, इफ दिस इज एंटीरियर वन, सो ये इस तरफ के पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से कोऑर्डिनेट करेगा। इफ दिस इज पोस्टीरियर वन, ये इस तरफ के एंटीरियर से करेगा, राइट। किस तरह है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और लैटरल आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये सारे इनके एम्पलरी रीजन, ये जो डायलेटेड हैं, इनके अंदर हमने पढ़ा क्रिस्टी है, उनके अंदर हेयर सेल्स हैं। बिल्कुल ऐसे इस वेस्टिब्यूल को खोल दो, इस डब्बे को खोल दो, तो जो टूवर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल है दैट वाज यूट्रिकल, लाइक अ यूट्रस रिसीविंग फिलोपियन ट्यूब्स, ऐसे ही था ना। तो ये भी यूट्रिकल रिसीव कर रहा है सेमी सर्कुलर डक्ट्स इन इट, राइट। और जो सेक्यूल है ये इधर कॉक्लिया डक्ट को रिसीव करेगा, या इससे ये बनेगी। तो आपको ताकि याद रह जाए कि ये यूट्रिकल और सेक्यूल किस पोजीशन में है, व्हाट दे कैरी। इसके अंदर हमने पढ़ा था मैकुला स्पेशलाइज्ड एरिया है, अगेन हेयर सेल्स हैं, ठीक है। एक यूट्रिकल बनेगा और एक सेक्यूल। एक में डायरेक्शन ऑफ फाइबर्स यूं है और दूसरे में यूं है, परपेंडिकुलर टू ईच। तो दिस इज हाउ नॉर्मली हम, हर बंदे को सेंसेशन ऑफ वर्टिगो नहीं होता, हर बंदे को डिजीजनेस नहीं हो रही अनटिल अनलेस कोई आपकी अंदर पैथोलॉजी ना स्टार्ट हो जाए, लाइक मेनियर्स डिजीज हो गया है, या आपकी सेंसरी न्यूरोनल डेफनेस स्टार्ट हो गई है, जिसमें कहीं क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई या उसका पाथवे या एफरेंट फाइबर्स ना इन्वॉल्व हो गई हो। कुछ लोगों में बिनाइन पैरोक्सिस्मल ये वर्टिगो के एपिसोड्स होते हैं जो कि बिनाइन होते हैं, मीन्स दे आर नॉट लीथल, लेकिन उनको सडन चेंज ऑफ पोजीशन से प्रॉब्लम होता है। उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि क्रिस्टा के एम्पुला में, जो क्रिस्टा इसमें हेयर सेल्स हैं और मैकुला के हेयर सेल्स हैं, समटाइम्स दे मूव टुवर्ड्स इट सडन चेंज की वजह से। और उसका तरीका ये है कि देयर इज़ एलेस मैन्यूवर, ये वो बंदा आराम आराम से अपना पोस्चर चेंज अप करे, तो क्या होगा, जो हेयर सेल्स ये यूट्रिकल से इधर क्रिस्टा में या सेमी सर्कुलर कैनाल की तरफ मूव करे थे, वो वापस अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। उसको ये जो एबनॉर्मल फीलिंग है ये इस मैनूवर से ठीक हो जाएगी। अभी आपकी एज नहीं है, समटाइम्स व्हेन यू रीच टुवर्ड्स द लिटिल बिट ओल्डर एज, तो ड्राइव करते वक्त आई जस्ट फील दैट कि क्या होता है, सडन चेंज से आपको वर्टिगो या डिजनेस की फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप अपने आप को एक्लिमेटाइज कर लें और एक प्रॉपर अंदाज से सडन स्टेयरिंग रेट को मूव ना करें तरीके से, देन यू विल नॉट अप्रिशिएट दिस। सो देयर आर सो मेनी रिलेटेड ईयर पैथोलॉजीज दैट कैन कॉज डिजीनेस या लॉस ऑफ बैलेंस फीलिंग। थैंक यू वेरी मच।